Dishonor of bill means non-payment of bill by the drawee on due date. Dishonor of bill means non-payment. Non-payment of what? Non-payment of bill. Who is supposed to pay the amount? The drawee is supposed to pay the amount. So non-payment of bill by the drawee. Now remember, dishonor is a serious mistake committed by drawee. इसके बहुत खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं. सबसे पहला तो गुडविल लॉस है. अगर आप अपने वर्ड्स को ऑनर नहीं करते हो, जैसे आपने कहा कि हम कल 5 क्वेश्चंस करके रखेंगे और आपने नहीं किए 5 क्वेश्चन, तो पहली बात तो आपने अपनी गुडविल खराब की कि आप होमवर्क नहीं करते, पढ़ाई नहीं करते. दूसरा, आपसे भरोसा उठेगा, ट्रस्ट लॉस होगा. तो मार्केट में भी, बिजनेस में भी सेम रिलेशंस चलते हैं. एंड a large portion of relations depends on trust and faith. तो अगर ड्रॉई पैसे देने से मना करता है तो लीगल एक्शन भी हो सकता है उसके अगेंस्ट. अब जब जब डिसऑनर होगा तब तब वो एक दूसरे को अपनी बुक्स में डेटर क्रेडिटर बनाएंगे. इसमें हम आगे पढ़ेंगे कि इसमें एक टर्म आएगी नोटिंग चार्जेस. ये आपको मैंने कहानी सुना के बताया हुआ भी है क्लास में. नोटिंग चार्जेस, नोटरी पब्लिक एंड नोटिंग ऑफ बिल. राइट. नोटरी पब्लिक is an advocate appointed by central government. He is lawyer by profession, and whenever such dispute arises between two or more parties, for evidence purpose you need to go to notary public. So when the bill is dishonored, whosoever is the payee will go to notary public if they want to take any legal action in future. Right? It is not necessary that after every dishonor you need to rush to notary public. अगर आपको लग रहा है कि नोटिंग बिल की जरूरी है तो जाना चाहिए, नहीं तो आपकी मर्जी है, ना जाए. बट इफ यू गो टू नोटरी पब्लिक you will be able to generate evidence of dishonor. Am I audible to you all better? Yes. Okay. So, payee will go to notary public. Payee will go to notary public complaining about, जैसे छोटा बच्चा अपनी मम्मी से शिकायत करता है ना, मम्मी मम्मी भैया ने मेरी चॉकलेट ले ली, वो दे नहीं रहा, या टॉय ले लिया, दे नहीं रहा. तो हम पेई हैं, पेई बोलेगा जाके नोटरी पब्लिक को, भैया भैया ड्रॉई पैसे नहीं दे रहा, इसकी शिकायत कर रहे हैं हम. तो ये बोलते हैं कि अच्छा तुम्हारे बोलने से नहीं मानूंगा, मेरे को वाकई खुद भी देखना पड़ेगा. तो नोटरी पब्लिक विल टॉक टू ड्रॉई. When ड्रॉई says no to notary public also, that yes, I am not able to give you the money. So notary public will give you a certificate mentioning that the bill is dishonored. For this service he will take some charges, and this process is called noting of bill. Initially the noting charges will be paid by payee. Later on the payee will recover amount from
The drawee is the final party on whom the burden of noting charges will fall. अल्टीमेटली नोटिंग चार्जेस का पैसा किसकी जेब से जाएगा लास्ट में? तो ड्रॉई की जेब से. इनिशियली उसका लोड जो भी पेई है उस पे आएगा, लेकिन बाद में वो पेई एक प्रॉपर चैनल के थ्रू ड्रॉई से रिकवर कर. सो नोटिंग चार्जेस is the only headache in dishonor of bill. Let's see this question. Dishonor of bill retained till due date. इसमें भी बेटा चारों कंडीशन आएगी. retained bill का dishonor, bill sent for collection का dishonor, bill endorsed का dishonor और discounted bill का dishonor. On 15 May, Harish sold goods to Mitesh for 40,000 and drew a bill for 3 months. On the due date, Mitesh failed to pay the amount due to financial problems. He cleared the dues with interest of 300 on 1st September. Pass entries. देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी दम नहीं इस क्वेश्चन. कैसे होगा देखिए, हम लिखेंगे 15 May. Harish and Mitesh. So on one hand we will write Harish, on other hand we will write Mitesh. Harish sold goods of 40,000. Mitesh 2 sales. शॉर्ट में लिख दो, चल जाएगा, समझ में आ जाएगा आपको. Yes, sir. Purchases to Harish 40,000. Then on the same date a bill is drawn. Bill is drawn for 3 months duration. So BR account debit to Mitesh 40,000. Harish debit to bills payable 40,000. 3 months will be over on June, July, August. 18 August. 18 August bill is due, but Mitesh expressed his inability to pay the amount. कितनी भी अच्छी अंग्रेजी बोल लो, अल्टीमेटली मीनिंग क्या है? पैसे नहीं दे रहे हो, डिसऑनर कर रहे हो, है ना. भाषा कितनी भी अच्छी हो, मितेश एक्सप्रेस्ड हिज inability to pay the amount means what? Honor or dishonor? Dishonor. Dishonor. अब देखो इस क्वेश्चन में कोई नोटिंग चार्जेस वगैरह नहीं है, तो क्या करो, बस इस एंट्री को पलट दो. मितेश को फिर से बना लो अपना डेटर, और ये बीआर का अकाउंट जो आप खोल के बैठे हो इसे क्लोज कर दो. तो बीआर टू मितेश के सामने हो जाएगा मितेश टू बीआर. बराबर, कोई कंफ्यूजन तो नहीं. इधर भी एंट्री को उल्टा कर दीजिए. बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू हरीश. अब हम कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते थे, इसलिए हम नोटरी पब्लिक के पास नहीं गए, हमने कोई नोटिंग चार्जेस वगैरह नहीं इनकर किए. लेकिन 1 सितंबर को बेचारा वो खुद ही आ गया पैसे लेके, और उसने इंटरेस्ट के साथ आपको 40,300 रुपए दे दिए. आपको मिला कैश. कैश मिल गया ज्यादा 40,300 का, जबकि मितेश आपका डेटर है सिर्फ 40,000 के लिए. तो बताओ बाकी 300 रुपए किस बात के मिले आपको? Interest. इंटरेस्ट. ये लिख देगा हरीश डेबिट इंटरेस्ट डेबिट
क्योंकि इंटरेस्ट इस बंदे के लिए एक्सपेंस है, हमारे लिए इंटरेस्ट इनकम है, इसके लिए एक्सपेंस है। टू कैश ही इज पेइंग 40,300 जबकि एक्चुअली देना 40,000 ही है। हरीश क्रेडिट 40 से तो डेबिट भी 40 से होगा, मगर 300 रुपये ज्यादा ब्याज के देना पड़ रहे। क्वेश्चन खत्म। ये आगे अगले क्वेश्चन में नोटिंग चार्जेस। ए ओड बी अ सम ऑफ ₹50,000। अब ये देखो ए और बी ए सम, और यहाँ ऊपर था हरीश सोल्ड गुड्स टू मितेश, तो जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में बाइंग सेलिंग का ट्रांजेक्शन हो। A and B are already in trade relation and debtor creditor to each other. A owed B a sum of ₹50,000. Who is drawer and who is drawee? Identify. A is drawee and B is drawer. A is drawee and B is drawer. Very good. A owed B का मतलब है A has to pay amount to B. Good बेटा। 50,000 18 अक्टूबर को बिल ड्रॉ किया उसने 50,000। तो वी विल मेक बुक्स बी द ड्रॉअर ए द ड्रॉइंग। देखना बेटा ये एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है जो टीचर एग्जाम में डालते हैं। अपने को आदत होती है लेफ्ट पे ए और राइट पे बी की, लेकिन अब इधर बी आ गया इधर ए आ गया। ख्याल रहे प्रैक्टिस में भी ऐसी उल्टी प्रैक्टिस कर लेंगे तो ध्यान में रहेगा अपने को। 18 अक्टूबर आई एम ड्रॉइंग अ बिल BR to A 50,000. He is accepting the bill, so B debit to bills payable 50,000. Then the bill is of 3 months duration and on maturity the bill is dishonored. Noting charges 400. Very good. 3 months की डेट कैलकुलेट करो। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, जनवरी 21। वेरी गुड। ये बन जाएगा फिर से मेरा डेट टू बी आर 50,000। अब जो नोटिंग चार्जेस खर्च हुए हैं 400 रुपए के, वो कौन पे करेगा? अभी डिस्कस किया हमने। इनिशियली दे आर पेड बाय द पेई ऑफ द बिल। सो चूंकि ये बिल रिटेन्ड है तो ड्रॉअर हिमसेल्फ इज द पेई आल्सो, सो ही विल पे द अमाउंट, बट it is not his expense. He is paying on somebody else's behalf. So B is paying the amount on behalf of A. Drawer paying on behalf of drawee, तो drawee को अपन डेटर बनाएंगे। A debit to cash 400 in the name of noting charges। ये कैश किस बात का दिया? नोटिंग चार्जेस का। नरेशन लिखोगे और क्लियर हो जाएगा। बीइंग नोटिंग चार्जेस ₹400 पेड ऑन एज बिहाफ। तो अब वो हमारा डेटर बन गया। अब इन दोनों एंट्री को हम क्लब करके भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? क्लब करके लिखेंगे तो कंपाउंड एंट्री क्या होगी? ए डेबिट 50,400 to BR 50,000 to कैश ब्रैकेट में नोटिंग चार्जेस 400। ये बंदा क्या लिखेगा? बिल्स पेबल डेबिट 50,000
बेसिकली इसके यहाँ ये जो एंट्री हुई है इस एंट्री का रिवर्स होगा, क्योंकि इस एंट्री के बाद इसके यहाँ कोई एंट्री नहीं हुई है बेटा. Bills payable debit. Noting charges ultimately are to be borne by the drawee of the bill to B's account. मैंने अपनी बुक्स में ए को डेटर बनाया, ए अपनी बुक्स में बी को क्रेडिटर बनाएगा. क्या ये एंट्री डाइजेस्ट हो रही है आपको? कोई कंफ्यूजन है इसमें? क्विकली स्पीक अप. Are we not connected? Can you show the solution once again? I can show, no problem. See it. The first entry is BR to A, B to bills payable. These two entries are cancelled out by this single entry, A to BR to cash. Okay, beta. You want to see the entire screen together? Yes, sir. आ रही नजर आपको? Yes, sir. बढ़ता हूं आगे. कि आपको स्क्रीनशॉट अभी लेना है बेटा? ले लिया सर. ओके, चलिए. अब इसका समाधान क्या हुआ? इसके समाधान में एक नया बिल 2 मंथ्स का ड्रॉ किया है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 12% पर एनम. द न्यू बिल वॉज मेड ऑन मेच्योरिटी. अब जो नया बिल अपन ले रहे हैं सेम डेट पे 2 मंथ्स का, उसमें इंटरेस्ट मिला के ले रहे हैं. इंटरेस्ट हमारे लिए कमाई है. बिल हमको मिल रहा है ए से, तो हम लिखेंगे बी आर टू ए टू इंटरेस्ट. बी आर कितने रुपए का होगा? 50,000 का तो पुराना बिल था, 400 रुपए नोटिंग चार्जेस के थे, तो 50,400 की टोटल अमाउंट है. इंटरेस्ट का परसेंट कितना बता रहा है? 12%. सो 12/100 इंटरेस्ट की अमाउंट है. 2 मंथ्स आगे बढ़ा रहे हैं, 2/12 कैंसिल हो गया. 1008 रुपीज इंटरेस्ट के आ गए. तब आपको नया बिल जो मिलेगा वो कितने का मिलेगा? 50,400 पुराना, 1008 ब्याज का, 51,408 ये आएगा बिल का. ये बंदा लिखेगा बी डेबिट इंटरेस्ट डेबिट, क्योंकि इंटरेस्ट इसके लिए लॉस है, टू बिल्स पेएबल अकाउंट. ये न्यू बिल इज ऑफ 51,408. interest is 1,008 and B debit is 50,400. This bill was made on maturity. अब इसकी 2 महीने बाद ड्यू डेट आएगी. 2 महीने कब पूरे होंगे? 11 और 12, नवंबर दिसंबर. 24 दिसंबर इसके पैसे मिल जाएंगे. कैश अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट 51,408. Bills payable account debit
to cash 51,408. क्वेश्चन खत्म हो गया. ये चल रहा है टॉपिक अपना dishonor of retained bill. We have done this first question, we have done this second question, and we have also discussed some basics related to